Hello friends, I hope you all are safe and doing really very well. I'm back with my accounting knowledge to share with you all. Just imagine there's a business owner and वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर 5 डिफरेंट अकाउंटेंट्स के पास जाता है ताकि वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सके और रिजल्ट्स को असर्टेन कर सके फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. Now all 5 accountants prepare financial statements differently and the results ascertained by them are also different. Now imagine the business owner who is not having any knowledge about accounting, what impression will he have about accounting and those accountants? He'll be confused. उसे समझ ही नहीं आएगा किसके इन्फॉर्मेशन पे, किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मैं रिलाई करूँ और किसके पर मैं नहीं करूँ रिलाई. वो तो कंफ्यूज हो जाएगा. So in order to avoid this situation, in order to avoid these judgments that have been used by these accountants while preparing the financial statements of that particular business, certain accounting principles, concepts, policies, rules have been developed over time, which are widely used by the accountants, which have to be used by the accountants for doing the accounting and for preparing the financial statements, for ascertaining the results. मैंने हमेशा हर वीडियो में बार बार रेफर करा है कि there are set rules, there are set policies जो कि develop हुए गए हैं in a particular form which have to be followed while preparing the accounting, while preparing the financial statements or while doing the accounting. Imagine करो आप एक यूजर है, there are users, there are multiple users of financial statements. At particular point of time, a user is comparing the financial statements of 2 different businesses. But he cannot make any decision, वो कोई conclusion तक पहुंच ही नहीं पाएगा because इसके financial statements अलग तरीके से बने हुए हैं, उसके financial statements अलग तरीके से बने हुए हैं. There is no common base, कोई common base ही नहीं है जो follow किया गया हो जिसके basis पर उस यूज़र को समझ आ सके कि भाई कौन सा बिजनेस बेटर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है. तो यही सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज डेवलप किए गए हैं बाय द अकाउंटिंग बॉडीज जो कि यूनिवर्सली फॉलो किए जाते हैं बाय अकाउंटेंट्स व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग. एंड दीज प्रिंसिपल्स आर बेसिकली कॉल्ड generally accepted accounting principles, which are basically the principles, the concepts, the policies of accounting that forms a base of accounting, that is universally accepted. That's a particular idea, a particular notion that has to be followed while doing the accounting. So in this video we will discuss all these accounting concepts, principles जो कि बेस है अकाउंटिंग के, जो कि यूनिवर्सली फॉलो किए जाते हैं और करने हैं while doing the accounting. So let's begin. I have written on the board 3 accounting concepts which we will discuss in today's video because we are like there's time constraint with us. तो हम अभी 3 concepts discuss करेंगे and then we will continue in the forthcoming videos. The first is entity concept. Entity concept simply means that a business is separate from its owner. अगर एक person ने business खोला है तो वो person उस business से बिल्कुल अलग है. ओनली द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वही बिजनेस के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखी जाएंगी. अगर उस ओनर के कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो बिजनेस की बुक्स में नहीं लिखी जाएंगी, वो पर्सनली मेंटेन करेगा, वो जहाँ भी उसे मेंटेन करनी है. जैसे कि इफ अ पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस और वो 5 लाख रुपीज़ की फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इन्वेस्ट करता है टू बेसिकली स्टार्ट द बिजनेस. ये 5 लाख रुपीज़ जो कि बिजनेस को उसके ओनर से मिले हैं, ये 5 lakh rupees are shown as a liability in the books of the business. Now these 5 lakh rupees which is shown as a liability in the books of business is basically something which the business owes to the business owner. ये पैसे इन्वेस्ट करने के बदले बिजनेस ओनर को उसके प्रॉफिट, बिजनेस के प्रॉफिट्स और रिटर्न्स में हिस्सा मिलेगा क्योंकि वो उसने अपनी कैपिटल इसमें लगा रखी है. अब सपोज करिए कुछ टाइम बाद बिजनेस ओनर को कुछ पैसे चाहिए फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस और उसने कुछ अमाउंट उसी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया. For example, 50,000. Now the capital of the business will be reduced by 50,000. The liability of the business will be reduced by 50,000. और वही 50,000 जब बिजनेस ओनर उसको किसी भी पर्पज के लिए यूज कर रहा है उसे हम बिजनेस की बुक्स में नहीं दिखाएंगे. So this is basically entity concept which clearly means कि business owner is separate from business. Business owner और बेसिकली पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को बिल्कुल सेपरेट रखना है, इसलिए ही इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करा गया है, बनाया गया है. बिजनेस हैज गॉट इट्स सेपरेट आइडेंटिटी, ओनर हैज हिज ओन सेपरेट आइडेंटिटी विच कैन नॉट बी मिक्सड बाय दिस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. देन कम्स पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट.
इन आवर फर्स्ट वीडियो वी स्टडीड गोइंग कंसर्न assumption, जिसमें मैंने आपको ये बताया था दैट वी अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable future and there is no intention to close the business or to curtail the matters or affairs of the business. अब अगर वो फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगा, एक इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा, तो क्या मैं इनडेफिनेट पीरियड तक बैठी रहूंगी रिजल्ट्स असर्टेन करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए? नो, मैं इसी इनडेफिनेट पीरियड को अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पार्ट्स में, कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स में बांटूंगी, और इस हर एक इंटरवल को आई हैव टर्म्ड इन अकाउंटिंग वर्ड इट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, जो कि मैं बार बार मेंशन करती हूँ, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. Financial statements are basically prepared for a particular period, results are ascertained for a particular period, then there is next accounting period and the process is followed. This accounting period is usually April to March और Jan to December, और हर accounting period के लिए accounting की जाती है, books लिखी जाती है, financial statements बनाए जाते हैं. So this is our second concept which is called periodicity concept, कि business जो है अपनी books लिखता है for a particular accounting period. Then there is money measurement concept. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था, एक लिमिटेशन पढ़ी थी हमने अकाउंटिंग की, that all the business transaction which have taken place in money or any kind of other resource which can be converted in money are only recorded in the books of business. अब जैसे कि एम्प्लॉय की लॉयल्टी है, इवन दो इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर बिजनेस ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, लेकिन मैं लॉयल्टी को मनी में मेजर नहीं कर सकती, तो मैं लॉयल्टी को बिजनेस की बुक्स पे दिखाऊंगी भी नहीं. तो ये एक लिमिटेशन भी है, ये कॉन्सेप्ट भी है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मनी में हो रही है, केवल वही बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड की जाएंगी. अगर वो मनी में नहीं हो रही है या कोई ऐसे रिसोर्स में हो रही है जो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी. और ये ज़रूरी भी है, हमें एक कॉमन बेस, एक कॉमन स्केल चाहिए जो कि वाइडली एक्सेप्ट होता है, जिसके बेसिस पर हम मेजर कर सकें ट्रांजेक्शन्स को, रिकॉर्ड कर सकें, रिजल्ट्स असर्टेन कर सकें. एंड मनी इज द बेस्ट measurement scale that can be used worldwide, so this is third concept called money measurement concept. We'll discuss only these three concepts in this video, and rest of the concepts we will discuss in our next videos, because there are many concepts and then video will be extended और आप लोग मुझसे बोर हो जाओगे. Now let's proceed towards the last part of a video where I will share my own personal accounting experience with you all. In my last video, I shared how I started my journey to CA. बहुत ही फाइट और बहुत ही ज़्यादा मेंटल इंस्टेबिलिटी के साथ मैंने CA में एंटर करा. आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम मैं कंप्यूटर क्लासेस भी ले रही थी जब मैंने CA का फॉर्म भरा था, और मैं कंप्यूटर क्लासेस लेके शाम को आई वॉज गोइंग बैक टू माई होम, और मैं आई वॉज लाइक वॉकिंग, और चलते चलते मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, खुद से एक टाइप से मैं प्रण ले रही हूँ कि आज मैंने CA का फॉर्म भर दिया है, अब मुझे अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है कि दैट सोनम कैन डू CA. मुझे फोकस्ड रहना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे करके दिखाना है. कुछ टाइम बाद घर में एक पंडित जी आते हैं, ऐसे कोई रैंडम से, आई डोंट नो क्यों आए थे वो. मेरी मम्मी बोलती है ऐसे ही मज़े मज़े में कि तू चल अपना हाथ दिखा. मैंने हाथ दिखाया, पंडित ने लाइक मेरा हाथ ऐसे करके बोलते हैं कि यू कैन नॉट डू CA. थोड़ा बुरा लगा, नेगेटिव भी हुई मैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, आज मेरा ये प्लान है. मैं अपने प्लान में लग गई. कुछ टाइम बाद ऐसे ही मेरे घर में कोई रिलेटिव है, उन्हें भी पाम रीडिंग आती थी, उनको भी मैंने मज़े मज़े में अपना हाथ दिखाया, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली, तू नहीं कर सकती बेटा CA, तेरे से नहीं होगी. सो आई वॉज लिटिल डिसहार्टेंड, क्योंकि मुझे मतलब मेरे रिलेटिव ने ये बात बोली तो थोड़ा मुझे लगा था कुछ टाइम के लिए बुरा, लेकिन फिर मैं वापस अपनी स्टडीज़ में लग गई कि नहीं करना है CA, तो करना ही है. और उसके बाद क्या, मैं बन गई CA. तो मैं आप सब लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने करियर फील्ड चूज़ कर लिया है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू ऑल योर एनालिसिस, तो आप उसमें पूरी तरीके से लग जाओ, फोकस्ड रहो, प्लान करके चलो चीज़ें, और बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी. किसी भी रैंडम इंसान पे, किसी भी रैंडम बात पर बिल्कुल विश्वास मत करो. डोंट लूज द होप, बिल्कुल मिलेगी इफ़ यू विल वर्क हार्ड. आई होप मेरा अकाउंटिंग एक्सपीरियंस किसी को मोटिवेट करने में हेल्प आउट करेगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. If you liked my video, please press the like button. If you have not subscribed to my channel, please subscribe it. Please share my video. जो भी किसी के भी ये काम आ सकता है, please share it. If you have any comments, any suggestions, any queries, please drop me a comment in the comment box and I'll really feel good. Thank you for watching me. Bye bye. Take care.